Assalamualaikum guys, welcome back. This is our 12th podcast of People's Podcast Pakistan. Today we will be discussing origins of Roman Empire, or you can say Roman monarchy. Okay? And we have Abdullah Ali Khan with us over here as usual. Abdullah Ali Khan and me as usual. So yes, Abdullah Ali Khan, how are you, man? ठीक ठाक यार। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र. So अभी हम स्टार्ट करेंगे origins of Roman Empire. उसके बाद we will discuss till end of monarchy and start of रिपब्लिक। Republic of Rome. ठीक है, Republican of Rome. So I'm gonna share my screen and I'm gonna start. Yeah, as you can see over here, I've made a small PowerPoint presentation to make it easy for you guys, whoever is watching. So give me a second. So we're gonna discuss the regal period of Rome. We are gonna start from the founding days of Rome. We're gonna discuss what is the mythology and what is the reality behind the forming of regal period of Rome. We're gonna discuss the periods of kings. We're gonna discuss kings after the foundation of Rome, and we're gonna go up till Republican of Rome. So, how do we find much of our literature about foundation of Rome? So, uh, Titus Livius, who is also known as Livy, is the most accurate account of the story of about the foundation of Rome. इससे पहले ज़्यादातर जो literature मौजूद था, it was mainly based on mythology. For example, there was a writer named Enid, and उसकी book थी, it was like Enid's Virgil book. The book of his name was Virgil, and according to that book, it was said that there was a guy named Enos who just escaped after the Trojan War from Greek, and then he traveled to the island of Italy, and there he founded a small city which later became the Rome. And इसमें बहुत ज़्यादा mythology थी कि उसके साथ different gods थे, उनकी powers थी, and all that BS. मगर जो हमें कुछ हद तक एक्यूरेट जो था अकाउंट मिलता है अबाउट फाउंडेशन ऑफ रोम, इट इज़ फ्रॉम लीवी की जो बुक है, विच इज़ नोन एज हिस्ट्री ऑफ रोम, और द ओरिजिनल नेम इज़ द फाउंडिंग सिटी. वो आज भी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने उसको ट्रांसलेट किया हुआ है और आपको रेडिली अवेलेबल भी होगी मेरे ख्याल में किसी भी फेमस वेबसाइट पे. इट्स अ वेरी वेरी you can say very big book which covers all the periods of Rome, whether it is regal period, whether it is imperial Rome, or whether it is Republican of Rome. So Livy is the main writer जिससे हमें ज़्यादा लिटरेचर मिलता है. सो यस, आपको बस दिख रही होगी लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर भी है लीवी की. इसकी ओरिजिनल पिक्चर थी और ये ओरिजिनल बुक थी इसकी, उसका कवर है ये. सो तो हमें जो ज़्यादातर मेन जो जो ज़्यादातर एक्यूरेट अकाउंट है, it is about the story of twin brothers who were born to a virgin priestess with the name of Riha Silvia, जो कि इटालियन टाउन एल्बा लुंगा में पैदा हुए थे. अब एक प्रीस्टेस के यहाँ सिल्विया ने एक क्लेम किया था कि शी वॉज रेड बाय गॉड ऑफ मार्स. और मगर ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस है वो ये कहते हैं, जैसे कि लीवी ये खुद कहते हैं, मे बी शी हैड एन अफेयर विच शी वॉज ट्राइंग टू हाइड. और उसको ज़्यादातर ग्लोरीफाई करने के लिए लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ में ये कह दिया कि शी क्लेम टू हैव बीन रेड बाय गॉड ऑफ मार्स. बट इसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर उस वक्त लोग ज़्यादा मैथोलॉजीज में बिलीव करते थे. सो शी ट्राई टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम शेम, एंड शी ट्राई टू save herself from, you can say, from you can because it's not considered to be having an affair while you are a priestess in any society, you know. तो इसलिए ज़्यादा लोग कहते हैं कि शी क्लेम टू हैव बीन रेप्ड बाय गॉड ऑफ मार्स, बट इंस्टेड शी हैड एन अफेयर विद समवन एल्स. अब जो सिल्विया थी, सिल्विया का जो भाई का जो अंकल था, एमिलियस रेन, ही वॉज द किंग ऑफ एल्बा लुंगा. और उसने इन ट्विन बच्चों के पैदा होने के बाद ये सोचा कि दीज ट्विंस कैन बी अ थ्रेट टू माई किंगशिप, and as they grow they will be a threat. So they like
वो बच्चे पैदा होते साथ ही उनकी भी इनको एक थ्रेट था कि उनको मार दिया जाएगा। सो सिल्विया ने ऑर्डर किया अपने एक सर्वेंट को कि बेबीज़ को समुद्र में बहा दिया जाए। अब जो सर्वेंट था ही वाज़ एक्चुअली अ मेल, और उसको तरस आ गया कि मैं बच्चों को ना बहाऊँ समुद्र के अंदर, तो उसने एक बास्केट में डाल के बच्चों को एक रिवर के किनारे पे छोड़ दिया। अब जैसे-जैसे रिवर के आपको पता है रिवर के अंदर पानी बढ़ता है, बच्चे फिर वॉश अप होके एक शोर पे पहुँचे। वहाँ उनको एक वुल्फ ने बचाया। ये सारी मिथोलॉजी लोग कहते हैं कि इट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम from events of Moses, from events of you can say Yusuf, Prophet Yusuf, जिस तरह उनकी स्टोरी है कि उनको बहाया गया, ठीक है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये भी मिलता है कि हिस्ट्री में ज़्यादातर जो मैथोलॉजीज़ हैं दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एब्राहमिक रिलीजन्स, ठीक है। तो यहाँ लीवी ने भी पॉइंट आउट किया था कि दिस स्टोरी कैन बी अ बिट ऑफ यू कैन से एग्जैजरेशन एंड बिट ऑफ अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम एन इब्राहिमिक स्टोरी ऑफ यूसुफ, ठीक है। लीवी ने ये नहीं लिखा, मगर आज के राइटर्स कहते हैं कि ये भी हो सकता है, उनके सिमिलैरिटीज़ देखें, बच्चों को बहा दिया गया समुद्र के अंदर, और और वही जैसे कि जिस तरह हज़रत यूसुफ की स्टोरी में है कि उनकी जो मतलब कि जो सर्वेंट था उसने भी उसी तरह तरस खा के बच्चों को बास्केट में डाल के समुद्र के किनारे पे छोड़ दिया। अब कहते हैं कि बच्चों को एक वुल्फ ने बचाया और बच्चों ने बाकायदा वुल्फ के दूध के ऊपर ज़िंदा रहे, यहाँ तक कि कुछ अरसे बाद एक शेफर्ड आया, मतलब कि चराहा आया, उसने बच्चों को देखा और उन बच्चों को अपनी केयर में ले लिया। एज यू कैन सी on the right side of the screen there is a statue from 2nd century BCE. This is a statue of a wolf, and they are depicting Romulus and Remus, and they are drinking the milk from wolf. और उसके नीचे ही एक पेंटिंग है, दिस इज़ अ फेमस पेंटिंग ऑफ निकोलस मैग्नार्ड फ्रॉम 1654, जिसमें उसने अपनी इमेजिनेशन यूज़ की कि जैसे किस तरह वो शेफर्ड इन दोनों बच्चों को उठा के अपने घर लेके आया अपनी वाइफ के पास, ठीक है। अभी जो बच्चे थे रोमुलस एंड रीमस, दे हैव सेड टू बी इन लाइक वो उस शहर में बड़े हुए, Shepherd took care of them, and but after some time they reunited with their grandfather Numitor, who and they helped their grandfather establish the rule back on Alba Lunga. तो मतलब कि जो था एमुलियस रेन, जो ऑलरेडी अल्बा लुंगा पे रेन कर रहा था, उसकी जो प्रोफेसी थी वो ट्रू हुई, मतलब कि उसका जो रूल था वो ख़त्म हुआ, और इंस्टेड जो इन ट्विंस का जो ग्रैंडफादर था ही बिकेम द किंग ऑफ एल्बा लुंगा। आफ्टर हेल्पिंग देयर ग्रैंडफादर इट इज़ सेड दैट these twins they set out to make their own city, which would later become the kingdom of Rome. So the problem is that as soon as these both twins they set out on a journey to establish their rule, they had some similar problems. What were the problems? Like where we would set the sort of city foundation. उन दोनों के अंदर disagreement हुआ कि where we should put the basis of foundation on this of the city. इट इज़ सेड दैट रोमुलस कह रहा था कि चोटी के ऊपर बनाया जाए, रिमुलस कह रहा था कि चोटी से नीचे एक नदी के पास बेसिस रखी जाए सिटी की। बट इट इज़ सेड दैट उनके अंदर बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ था। अगेन यहाँ राइटर्स ये कहते हैं कि इट इज़ लुकिंग लाइक द कि इसकी जो कॉपी स्टोरी की गई है, इट इज़ बिन कॉपीड फ्रॉम स्टोरी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एडम। आपको पता है कि केन एंड एबिल के बीच में जो फेमस फाइट थी, उसी तरह की फाइट यहाँ भी दिखाई गई है रोमस एंड रोमुलस के ऊपर। तो अब एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि एक दिन जो रोमुलस था वो सिटी की फाउंडेशन किसी तरह इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, और सिटी की फाउंडेशन थी, इट वाज जस्ट राइट बिसाइड अ रिवर। उस रिवर का नाम भी आई विल टेल यू एज वी मूव फॉरवर्ड। मगर as Romulus was building a small wall around the city, around the small city, in order to prevent it in order to build it for defense purposes, Remus ने insultingly उस दीवार के ऊपर से जंप किया, एंड उसको बस तंग करने के लिए टू मॉक रोमुलस कि तुम्हारी जो दीवारें वो इतनी छोटी हैं।
उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा स्टार्ट हुआ और रोमुलस इवेंचुअली किल्ड रीमस। रोमुलस ने रीमस रीमस को इवेंचुअली मार दिया। और उसके बाद ये कहा जाता है इन द अकाउंट्स ऑफ लीवीज बुक, रोमुलस ने अपने भाई को मारने के बाद ये चीखा कि सो पेरिश एनी वन एल्स हु शैल लीप ओवर माई वॉल्स। उसने ये कहा कि जो भी मेरी दीवार के ऊपर से छलांग मारेगा उसका भी सिमिलर फेट होगा, वो भी इसी तरह मारा जाएगा। Yep. Do you want me to start again or no? यार कंटिन्यू रख, मेरा लाइट से लगी थी यार, जस्ट रिकनेक्टेड। That's fine, no worries. So I was talking about Romulus and Remus. So Romulus and Remus, as they set out to found their own city, they had a disagreement कि हमने कहाँ सिटी की फाउंडेशन डालनी है। ठीक है, कहा यह जाता है कि रोमुलस कह रहा था कि हमने एक पहाड़ी के ऊपर सिटी की फाउंडेशन डालनी है, और रीमस कह रहा था कि हमने जो नदी है उसके करीब शहर की फाउंडेशन डालते हैं। दे हैड एन डिसएग्रीमेंट, मगर इवेंचुअली दे एग्रीड अपॉन से ऑन अ सिमिलर साइड। ठीक है, बट आगे जाके क्या होता है उनके बीच में, वो ऑलरेडी एक ना आपके बीच में होता है ना, एक नेगेटिविटी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन रोमुलस अपने छोटे से गांव के इर्द गिर्द एक डिफेंसिव वॉल बना रहा होता है। ठीक है, तो रीमूस क्या करता है, रीमूस उसको तंग करने के लिए जब वो काम कर रहा होता है अपनी दीवार के ऊपर, उसकी दीवार के ऊपर से छलांग मार के जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर रोमुलस को गुस्सा आ जाता है एंड दे स्टार्ट फाइटिंग। और इवेंचुअली रोमुलस अपने भाई रीमस को मार देता है। एंड एज ही kills him he shouts, so perish anyone else who shall leap over my walls। ये कहता है रोमुलस टू हिज डेड ब्रदर। यहाँ भी राइटर्स अगेन सेम यही कहते हैं कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी थी, उनके जो दो बेटे थे, उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ थी कि उनके अंदर फाइट पैदा हो जाती है, उनके अंदर नेगेटिविटी बीच में आ जाती है, उसी की तरह की हमें स्टोरी यहाँ नज़र आ रही है। सो वी डोंट नो इफ़ दिस स्टोरी इज़ ट्रू और फॉल्स, or it's been just, you can say, inspired from another book, another religion. But uh, continuing, राइटर यहाँ लीवी यहाँ ये लिखता है कि ये जो बात की थी रोमुलस ने, लाइक सो पेरिश एनी वन एल्स हु शैल लीप ओवर माई वॉल्स, दिस लेटर बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ रोम रोम काफ़ी belligerent स्टेट थी थ्रू आउट इट्स टाइम लाइन, एंड रोम defended aggressively against any kind of attack, any kind of foreign interference or foreign armies। तो ये लोग कहते हैं कि ये जो रोमुलस की स्टेटमेंट थी, ये एक तरह की, आप कह लो कि इसने जो लेटर जो फेट था, जो लेटर जो रोमन टेम्परामेंट था, उसकी एक फाउंडेशन रखी कि सो पेरिश एनी वन एल्स हु शैल लीप ओवर माई वॉल्स। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि अब शहर तो बन गया। ठीक है, मगर जो रोमुलस के पास कुछ दोस्त नहीं थे, कुछ ऐसे लोग नहीं थे जो उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है, इवेंचुअली कुछ लोग ये कहते हैं कि एक जिस जगह पे लोगों ने अपना शहर की फाउंडेशन रखी थी, उसी के साथ एक छोटा सा शहर था, अ सिटी ऑफ सबीन्स। वहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने आके रोमुलस को ज्वाइन किया, और इवेंचुअली दे बिकेम वेरी क्लोज कंपेनियन ऑफ रोमुलस। ठीक है, और इन सब ने मिल के एक छोटा सा गांव बनाया। इवेंचुअली गांव तो स्टार्ट हो गया, एक छोटा सा टाउन तो स्टार्ट हो गया, मगर यहाँ फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम थी। ठीक है, और मतलब कि जनरली पॉपुलेशन बहुत कम थी। उसको सॉल्व करने के लिए पहले रोमुलस ने ये कहा कि एनी वन हु इज़ अ कॉन्विक्ट और हु इज़ अ स्लेव एंड हु वांट्स टू सीक फ्रीडम, वो आके हमारे शहर में रह सकता है। इस तरह एक बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन बूस्ट आया, मगर पॉपुलेशन बूस्ट जो था वो सिर्फ मेल पॉपुलेशन बूस्ट में था, फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम थी। इसके लिए आ, एक बहुत ख़राब किस्म का प्लान बनाता है रोमुलस, उसकी कंपेनियंस। रोमुलस और उसके कंपेनियंस क्या करते हैं कि ये लोग अपने जो साथ की जो टाउन थे सबीनीस और लेटियम्स के लोगों को बुलाते हैं एक रिलीजियस फेस्टिवल गैदरिंग पे। ठीक है, और जैसे ही वो फेस्टिवल हो रहा होता है, इन द मिडल ऑफ द फेस्टिवल रोमुलस अपने दोस्तों को, अपने साथियों को एक सिग्नल देता है, और उसके साथी उसके दोस्त हैं, वो औरतों को किडनैप करना शुरू कर देते हैं और उठाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो पिक्चर है आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे, ये निकोलस पॉसेंस की बहुत फेमस पेंटिंग है, रेप ऑफ सेबीनीस।
और इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह पेंटर ने इमेजिन किया था कि वो सीन कैसा होगा, ठीक है, जब वो इस तरह का एक मैसिव स्केल पे रेप हो रहा था इन द टाउन। अब जो लीवी है वो यहाँ डिफेंड करता है कि जो उन लोगों ने जो लड़कियां किडनैप की थी दे वर वर्जिन्स। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि और लीवी ये भी कहता है कि उन औरतों ने किडनैप होने के बाद बाकी में अपना एक किरदार अदा किया एज अ फीमेल, एज अ गुड फीमेल वाइफ्स, यू नो। सो दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक nonsense out of a nonsense to defend a rape, basically, in Roman history, in the in the Roman foundation. क्योंकि देखा जाए इट्स अ वेरी डिस्ग्रेस टू अ सिटी। अगर एक सिटी की डिस्ग्रेस, सिटी की जो बेसिस हैं वो बने ही एक मैसिव रेप के ऊपर, ठीक है कि नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा था कि विद द अब रोमुलस का एक काफ़ी क्लोज कंपेनियन था जिसका नाम था निमोटोर नाम था। और आफ्टर रोमुलस ने क्या किया, आफ्टर रोमुलस ने क्या किया, रोमुलस ने लोगों के अंदर एक रिलीजन का भी बेसिस रखी उसने। क्योंकि ऑलरेडी जो लोग थे उस वक्त की जो मिथोलॉजी थी आसपास की, जो इटली की जो मिथोलॉजी थी, इट वाज जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीस, ठीक है। गॉड्स वर प्रिटी मच सिमिलर, ठीक है। सो रोमुलस ने पहले ये कहा कि आई एम गोना मेक अ सेक्रीफाइस टू द गॉड ऑफ जुपिटर, और मैं उसके लिए एक टेंपल बनाऊंगा। तो उसने एक पहाड़ी के ऊपर एक टेंपल बनाया एज अ सेक्रीफाइस टू द गॉड ऑफ जुपिटर, ठीक है। रोमुलस ने डिवाइड किया पॉपुलस को इन इन तीन ट्राइब्स के अंदर, ठीक है, फॉर टैक्सेशन एंड मिलिट्री पर्पसेस। दिस वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रोमुलस दैट आई एम डिस्कसिंग। Each tribe was presided over by an official tribune and was further divided into 10 सूर्या। और मतलब कि उसको फॉरवर्ड उसको, एक तो पहली बात है कि लोगों को ट्राइब में डिवाइड किया, फिर ट्राइब के ऊपर एक ट्राइब्यूनल बैठता था, और फर्दर उन ट्राइब्स के अंदर 100 लोगों की डिस्ट्रीब्यूशंस होती थी, ठीक है, ऑफिशियली नोन एज सूर्या Curia. And Romulus also allotted a portion of land to each ward for benefit of the people. और रोमुलस ने एक ज़मीन, जो थी ज़मीन का एक हिस्सा हर सेंचुरियन या हर वार्ड को दे दिया, ठीक है। तो वो उस पर मतलब कि वो उस पर एग्रीकल्चर कर सकें, उस पर ट्रेड कर सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटायर किंगडम, ठीक है। मगर ये कहते हैं कि टैक्सेशन का और मिलिट्री डिवाइडेंस का जो पहला सिस्टम था, इट वाज प्रपोज्ड बाय रोमुलस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि रोमुलस ने ये भी डिसाइड किया कि हाउ द रोमन सेनेट विल वर्क। इसे सेनेट की बेसिस पे रखी। ही चोज 100 मैन फ्रॉम लीडिंग एंड मोस्ट पावरफुल फैमिलीज इन द किंगडम। उन सबको उसने कहा कि दे गना बी कॉल पार्टरेस, विच इज़ नोन एज सिटी फादर्स। और उनकी जो डिसेंडेंट्स होंगे दे विल बी कॉल्ड पैट्रिशियंस, ठीक है। उसने दो मेजर क्लासेस बनाई रोमन पीपल्स की, Philippians and Philippians, consisting of servants, freedmen, and fugitives who sought asylum, and who those were captured in war. The फिलिप्स जो थे इस तरह के लोग थे जो कि असाइलम सीख करने के लिए इस किंगडम में आते थे, या भी दे वर कैप्चर्ड इन अ वॉर ऑन अ डिफरेंट सिटी, ठीक है। टू इनक्रीज द ग्रोथ ऑफ सिटी, रोमुलस outlawed any kind of fugitive। मतलब कि उसने कहा कोई किसी भी फ्यूजिटिव ने, किसी भी स्लेव ने आना है तो वो हमारे शहर में आए, और उसको कैपिटोलिन हिल के ऊपर हम लोग असाइलम देंगे, जहाँ की उसने गॉड ऑफ जुपिटर का एक टेंपल भी बनाया था। तो इसके मतलब कि दीज आर ऑल द कंट्रीब्यूशंस ऑफ रोमुलस। मगर या दैट्स इट फॉर नाउ। इसके बाद हम वी गो टू न्यूमा पॉपुलस। जो न्यूमा पॉपुलस था, ही वाज अ सेकंड किंग आफ्टर रोमुलस की पासिंग के बाद कहते हैं कि नुमा पॉपुलस वाज द सेकंड किंग, एंड इसने एक साल के इंटेरिगम के बाद रूल किया, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि इसका तो ओरिजिन था वो सबीन से था। एंड इसने ज़्यादातर मतलब कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो रोम में बनी थी, ही वाज द फर्स्ट फाउंडिंग फादर ऑफ दोस। इसने रोमन कैलेंडर भी बनाया, ठीक है। इसने
बहुत ज़्यादा रिलीजियस, ये ज़्यादातर जो था बंदा, ही वॉज अ बिट ऑफ डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ पर्सन। इसकी नेचर में वॉर करना नहीं था नुमा पॉपुलस की। एंड ही वॉज अ बिट ऑफ, यू कैन से, डिप्लोमेट, एंड ही वॉज अ बिट ऑफ रिलीजियस लीडर एज वेल। इसकी जो हिस्ट्री देखी जाए, एंटायर नुमा पॉपुलस की जो हिस्ट्री देखा जाए, इसने ज़्यादातर जो रिलीजन था उसको सोशल लाइफ ऑफ रोमन्स के अंदर, रोमन्स की सोशल लाइफ के अंदर कॉमन किया। और एक तरह का उनके लिए कह दो कि एक लॉ बना दिया कि यू विल हैव टू अडहेयर टू दीज गॉड्स एंड यू विल हैव टू वर्शिप देम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अ राइटर, नुमा नुमा जो था ये अपने अपने फादर का सबसे छोटा बेटा था। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 21st of April 1753 BC। और कहते हैं कि इसका जो बाप था बहुत अमीर था, मगर इसने सारी अपनी अमीरी की ज़िंदगी छोड़ के, अपना सारा जो पैसा दौलत छोड़ के, आ, इसने रोमुलस के साथ आया, और रोमुलस के साथ इसने शहर बनाने में उसकी मदद की। ठीक है। कहते हैं जो किंग ऑफ से सबीन था, टाइटस, उसने अपनी बेटी दी नुमा पॉपुलस को बाद में, और नुमा पॉपुलस ने इससे शादी की। ठीक है। और after I think so, after his kingship, Numa also retired to a countryside। ठीक है। सो अब जो कहते हैं कि जब रोमुलस मरा, तो रोमुलस के मरने के बाद 1 साल का ऐसा पीरियड था जिसमें जो पावर थी, सारी पावर जो थी, इट वाज ट्रांसफर्ड टू सेनेट फॉर टेम्परेरी पर्पज। जैसे कि होता नहीं पाकिस्तान में, एक जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो एक निगरान वजीर आज़म आ जाता है। तो इन दिस केस इट वाज टाइप ऑफ ए, इट वाज जस्ट अ सेनेट लुकिंग ओवर द किंगडम। ठीक है। जो उसने सेनेट का जो पर्पस था, वो ये था कि दे आर गोना डू द डेली डीलिंग्स ऑफ रोम फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। जब 1 साल का हुआ तो देयर वाज अ फैक्शन बिटवीन, कुछ लोग डिवाइड हुए हुए थे। ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो था, जो टाइटस है सबीन्स का, उसको किंग बना देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, जो न्यूमा है, ही वॉज द फर्स्ट कंपेनियन ऑफ रोमुलस, इसको बनाना चाहिए। और मगर इवेंचुअली लोगों ने फिर नूमा पॉपुलस को ही चूज़ किया, एंड ही बिकेम द किंग। नूमा, वही मैंने जैसे बताया स्टार्ट में, जैसे ही वॉज अ वाइज लेजिस्लेटर, ही वॉज अ डिप्लोमेट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ रोमन रिलीजन। ठीक है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ही वॉज अ डिस्ग्रेस टू रोम, बिकॉज रोमर्स के खून में था लड़ना, एग्रेसिव अप्रोच अपनाना। मगर नुमा पॉपुलस ने एक तरह की कमज़ोरी दिखाई, एंड ही वाज अ डिप्लोमेट, जबकि इसको चाहिए था कि ही शुड हैव बीन अ एग्रेसिव रूलर। मगर ये है कि इसने अपने लोगों को लॉ अबाइडिंग, गॉड फेयरिंग सिटीजन्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और जो पॉपुलेशन जो कि बाहर से आई थी, जो कि ज़्यादातर दे वर फिल्थी पीपल, लाइक जो सारे असाइलम सीकर्स थे, उनको भी एक तरह का लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनाने पे मजबूर किया। जो कि कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज अ बिट हार्ड फॉर एनी रूलर टू डू, बट नुमा पॉपुलस डिड दैट। ठीक है। अब टू हिट Tullus Hostilius. He reigned from 672 to 640 BC. He was the third king of Rome, and he succeeded after Numa Pompilius, and later then he was succeeded by Ancus Marcius. Unlike his predecessor, मतलब कि जो पिछला किंग था नुमा पॉपुलस, जो था टूलस हॉस्टिलियस, he was very मतलब like he was a very aggressive ruler। ठीक है। जो टूलस था, ही वॉज अ वॉर मॉन्गर, ही वॉज अ वॉर किंग। और ठीक है, और इट इज़ अटेस्टेड लाइक ही वॉन मोर देन 3 or 4 बैटल्स, मेन बैटल्स फॉर रोम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स ऑफ डेथ ऑफ Tullius Historius vary. In the mythological version, events of Livy describes he angered god Jupiter, who then killed him with a bolt of lightning। अब जो ये जो हॉस्टेलियस है, इसके बारे में भी डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ही वॉज, जो mythological दिस वर्जन है ऑफ द, दैट, इवेंट्स ऑफ लिवी, uh, he was very, मतलब, he was a very aggressive ruler। ठीक है। जो टूलस था, ही वॉज अ वॉर मॉन्गर, ही वॉज अ वॉर किंग। और ठीक है, और इट इज़ अटेस्टेड लाइक ही वॉन मोर देन 3 or 4 battles, main battles for Rome। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स ऑफ डेथ ऑफ Tullius Historius vary. In the mythological version, events of Livy
Those are described as कि उसने गॉड जुपिटर को वो मतलब कि he disrespected गॉड जुपिटर and then he was killed with a bolt of night lightning. जबकि नॉन mythological जो वर्जन है उसमें क्या बताया जाता है कि he died of a plague after ruling Rome for 32 years. During the reign of Romulus, the Sabines and Romans were approaching each other in battle when a single Roman rushed and ahead and engaged Sabines warriors who had similar ideas. ठीक है, अब कहते हैं कि जब रोमुलस ने सिटी की फाउंडेशन रखी, as soon as the जो रोमुलस who was the first king, जब उसने सिटी की फाउंडेशन रखी, as soon as he put the sound foundation of the city, he was met by Sabine army from Sabines जो कि उनसे लड़ना चाह रही थी। एंड व्हेन दे वर इन अ फेस ऑफ, जबकि दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी, एक एक यंग आदमी सामने आया जो कि जिसने बहुत गुस्से में आके सबीन के अंदर घुस गया। ही वॉज इवेंचुअली किल्ड, मगर उसकी जो ब्रेवरी का जो एक्ट था वो सब ने याद रखा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रोमन्स थे पहले वो सबीज की आर्मी से डर के पीछे मुड़ गए थे, मगर इस यंग आदमी की ब्रेवरी देख के दे टर्न बैक एंड देन दे इवेंचुअली वॉन द बैटल। सो जो लोग ये कहते हैं कि जो टूलस हॉस्टेलियस था, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ दैट लेजेंडरी गाय। इसलिए एक तरह का उसको ऑलरेडी से बहुत आप कह लो कि उसको स्टेटस मोर इसको एक लेजेंडरी स्टेटस, एक वॉरियर स्टेटस पहले का मिला हुआ था। अब कहते हैं कि जो जो ये जो हॉस्टेलियस था, टूरिस्ट हॉस्टेलियस, इसने पावर में आते साथ ही एल्बा लूंगा जो था सिटी, एज आई टोल्ड यू, और गॉड, जैसे कि जो रोम से पहले जो बना हुआ था सिटी, इसके नेबरिंग सिटी था, उस पर अटैक कर दिया। मगर दोनों शहरों ने ये डिसाइड किया कि हर शहर से एक एक सेट आएगा ट्रिपलेट्स का, एंड दे विल फाइट ईच अदर, और उनमें से जो जिंदा बचेगा दे विल विन। ठीक है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो रोम का जो ट्रिपलेट था, जो ट्रिपलेट से दे वॉन, एंड ड्यू टू दिस विनिंग, जो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द टू आर्मीज विद ईच अदर, मतलब कि दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आके एक दूसरे से लड़ें, क्यों ना तीन तीन बंदे हर तरफ से आए और आपस में लड़ें। और जो रोम की साइड के जो तीन लोग थे वो जीत गए थे, और टूरस जो था वो इवेंचुअली ही वॉन द वॉर अगेंस्ट एल्बा लूंगा का वॉर जीतने के बाद टूलस ने क्या किया, बहुत ज़्यादा खून रेजी की टाउन के अंदर जाके। ठीक है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसने लिटरली पूरे शहर को जला दिया। ठीक है, और उसने कहा कि एल्बा लूंगा के लोगों को कहा कि रादर देन लिविंग इन योर ओन सिटी यू शुड नाउ कम टू रोम, therefore doubling the population of Rome. Turrus added Alban nobles to the Senate of Rome as well. जो एल्बा लूंगा के जो अमीर लोग थे, उसने उनको भी, इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी अपनी रोम की सेनेट के अंदर शामिल किया। एंड ही ऑल्सो यूज्ड द एल्बन नोबल्स टू इंक्रीज हिज कैवलरी फोर्स। इसके अलावा जो टूरिस्ट की जो सेकंड सबसे बड़ी हिस्टोरिकल अकॉम्प्लिशमेंट वो ये थी कि इसने जो ओरिजिनल रोमन रोमन सेनेट थी, द कुरिया हॉस्टेलिया, उसको बनाया। ठीक है, और क्योंकि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एल्बा लूंगा नोबल्स, एल्बा लूंगा से जो नोबल्स आए थे उनको शामिल करने के बाद सेनेट में लोगों की तादाद बढ़ गई थी, सो दे नीडेड अ बिगर हाउस। तो द फर्स्ट बिगेस्ट हाउस एंड द फर्स्ट मेन हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टूलिस। कुछ लोग ये कहते हैं कि टूलर्स ने अपने दौर में इतनी ज़्यादा रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं की थी एज नोमी पॉपुलस, और इस वजह से गॉड और जुपिटर ने उसके ऊपर अजाब नाजिल किया इन द फॉर्म ऑफ प्लेग, और इवेंचुअली टूलस ऑस्ट्रेलियस प्लेग की वजह से 32 ईयर्स हुक्मरानी करने के बाद मर गया। नाउ द द फोर्थ लेजेंडरी किंग इज़ नोन एज एनकस मार्सियस। एनकस मार्सियस ने 24 ईयर्स के लिए रूल किया, और लोग कहते हैं कि दे इज़ वेरी वेरी फ्यू वेरी लेस नोन अबाउट एनकस मार्सियस।
एनकेस एनकेस के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि एनकेस ने भी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने रूल किया था जंगे कर करके, उसने भी सेम अपने ऐसे ही किया। एंड ही और लोग ये कहते हैं कि जो जिस तरह नॉर्मल पॉपुलस की पॉलिसीज ने रोम को वीक कर दिया था, उसी तरह इन दोनों मतलब कि हॉस्टेलियस और एंकस मार्सियस ने रोम की फाउंडेशन दोबारा रखी और रोम को दोबारा एक्सपेंशन की तरफ लेके गए। अब लोग कहते हैं कि जो जो एंकस मार्सियस था, ये नुमा पॉम्पलस का नुमा पॉम्पलस जो था सेकंड किंग था रोम का, उसका एक दोस्त था मार्सियस, उसका बेटा था। ठीक है। तो देयर फॉर कुछ लोग ये कहते हैं कि ही वॉज ऑल्सो सेबीन। एंड दैट्स वाई, और उसका जो सर नेम था एनकस का, उसको जो एनकस का सर नेम मिला था, इट वॉज बिकॉज इसका जो एक हाथ था वो लगड़ा था। So that is why Anchus means bent arms. एंगस ने क्या किया? एंगस ने सक्सेसफुली वॉर किया अगेंस्ट लैटिन्स, और uh, और अकॉर्डिंग टू सम सेड दैट लैटिन्स ने ये एंटिसिपेट किया था कि आफ्टर नोमो पॉपुलस रूल जो रोम में इट हैज़ बिकम मच वीकर, बट टू देयर सरप्राइज एंकस मार्कियस ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको आसानी से हरा दिया। इसने उसके बाद क्या किया? इसने रोमन टेरिटरी को पावरफुल किया बाय एस्टेब्लिशिंग अ पोर्ट। इसने रोमन सिटी का पहला पोर्ट बनाया, पोर्ट ऑफ ऑस्टिया, और उस पर उसने सॉल्ट वर्क्स शुरू किए अराउंड द पोर्ट, और बोट मेकिंग भी इसकी दौर में शुरू हुई। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस साइट भी बनाई। एंकियस के बारे में ये कहते हैं कि आफ्टर रूलिंग फॉर 24 ईयर्स ये डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज, बट उसके दो बेटे थे, और जिनमें से कोई भी एक, जिनमें से एंटिसिपेट ये किया रहा था कि इनमें से कोई भी एक जो है वो फ्यूचर में आके किंग बनेगा। बट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंड। एंकस मार्कियस को सक्सीड उसके फ्रेंड ने किया, जिसका नाम था लूसियस ट्रैंकियस प्रिस्कस। जैसे कि बहुत अजीब गरीब नाम है, लूसियस ट्रैंकिनियस प्रिस्कस। ठीक है। और इसके बारे में हम दिस फिफ्थ किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। Lucius Tranquinius Priscus, or Tranquin the Elder, was the legendary fifth king of Rome and first of the Intrusion dynasty. इसने 38 साल तक रेन किया रोम के ऊपर। इसने रोमन एम्पायर को मिलिट्री के ज़रिए और कंस्ट्रक्शन के ज़रिए बहुत एक्सपेंड किया। ज़्यादातर इसकी अर्ली लाइफ के बारे में नहीं पता, मगर अकॉर्डिंग टू लीवी जो ट्रैंकिन था ये इटरूरिया से आया था, और लीवी ये भी क्लेम करता है कि इसका जो असली नाम था वो था लुकोमो। और प्रिस्कस और ज़्यादा नहीं कहते हैं कि आफ्टर inheriting his entire fortune, Lucius attempted to gain a political office. अब जो था लुकियस, ही वॉज ए फॉरेनर इन द सिटी ऑफ रोम। चाहे इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मगर ही स्टिल ट्राई टू establish himself as a politician in in Traquain, but because of ethnicity of father, uh, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि एज ये फॉरेनर था तो ही हैड सम डिफिकल्टीज एस्टेब्लिशिंग हिमसेल्फ एज ए पॉलिटिशियन इन रोम, क्योंकि पॉलिटिशियन जो रोम थे वो देवर अ बिट देवर अ बिट यू कैन से, जो रोमन सेनेट थी, दे वर्क लाइक वी कैन नॉट मेक एनी वन फ्राम फॉरेन लैंड्स ओवर किंग। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बात की जाती है। लेजेंड्स ये कहते हैं कि जो प्रिस्कस था, ये ही वाज कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन लैंड टू रोम ऑन इन हिज चैरियट, जबकि एक ईगल ने इसकी टोपी छीन के इसके सर से ले गया, और कुछ देर बाद वही ईगल की टोपी इसके सर पे वापस छोड़ गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रिस्कस था उसने ही टुक दिस एज अ प्रोफेसी, और उसने ये इंटरप्रिटेट किया कि आई विल बिकम द किंग ऑफ रोम, और उसने तो ऑलरेडी माइंड बना चुका था बिफोर कमिंग टू रोम दैट आई एम गना बी द रूलर ऑफ रोम वन डे। सो
अब जो पिछला किंग था, एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस किंग एनकिस मार्सियस ने अपने मरने के बाद अपने दोनों बेटों की जिम्मेदारी जो थी वो ट्रांक्विनियस को दे दी थी, क्योंकि ट्रांक्विनियस वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ एनकिस मार्सिनियस। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एनकिस मार्सिनियस था, ही स्टोल द he stole the uh, Roman kingship from the sons of Ancus Marcinius। ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपॉन द डेथ ऑफ मार्सियस, ट्रैंक्विन ने क्या किया कि ट्रैंक्विन ने एड्रेस किया सेनेट को और उनको कन्विंस किया कि ही शुड बी द इलेक्टेड किंग ऑफ मार्सियस, क्योंकि उसके जो दोनों बेटे थे वो भी छोटे हैं एंड दे कैन नॉट रूल रोम। एंड उसने पूरी बकायदा लॉबिंग की एंड इवेंचुअली he was chosen the king of Rome, because the Senate ने ही डिसाइड किया कि जो दोनों बच्चे हैं, जो एनकिस मार्सियस के बच्चे हैं, they are very young and they cannot rule yet। So as you can see in this picture on the right, you can see about the prophecy जिसमें उसकी कैप ली गई थी जब जब ये सिटी ऑफ रोम के अंदर आया था ट्रैंक्विनियस। ऐसी बात ही कहते हैं कि लीवी ये भी लिखते हैं कि जो ट्रैंकिन था, इसने जो रोमन सेनेट की जो तादाद थी वो 300 कर दी थी बाय एडिंग 100 एक्स्ट्रा पीपल फ्रॉम माइनर फैमिलीज एज वेल। कहते हैं कि ये पहला एम्परर था जिसने गरीबों को भी, मतलब कि जो गरीब थे उनको भी एक तरह का सेनेट के अंदर बैठने की ताकत दी। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि uh, इसने रोम को एक्सपेंड किया थ्रू हिज टैक्टिक्स एज अ गुड कमांडर। इसने आसपास के ट्राइब्स के ऊपर जैसे कि लैटिन सबीज एंड इंट्रूजियंस के ऊपर भी अटैक करके आसपास की शहरों को कब्जा किया और इस तरह इसने रोम की किंगडम को बढ़ाया। इस बात कहते हैं कि ट्रैंक्विन हैज सेट टू बिल्ड द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन रोम फॉर चैरियट रेसिंग। ठीक है। और इसने इस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम बनाया है और जिसके हमें रिमेन्स आज तक मिलते हैं। इसने इसमें बाकायदा स्टेडियम के अंदर बाकायदा इसने एक तरह का प्राइवेट सेक्शन बनाया फॉर रिच पीपल, फॉर सेनेट्समैन टू सिट एंड द फर्स्ट हॉर्सेस द बॉक्सर्स टू पार्टिसिपेट फ्रॉम इट्रोशिया एज वेल। ठीक है। और इसकी जो एक और मेन कंस्ट्रक्शन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही आल्सो क्रिएटेड अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम इन रोम एज वेल, जो कि आज भी मौजूद है। अब ये कहते हैं कि जो ये जो प्रिस्कस था, इसने 38 ईयर्स रेन किया रोम के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, लाइक जो सन थे एनकस मार्सिनियस के, जिनको पहले कहा गया था कि ये बहुत छोटे हैं, दे कैन नॉट रूल, उन उन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की टू किल हिम एंड टू टेक देयर राइटफुल किंगशिप। उन्होंने क्या किया, इन्होंने असैसिनेशन बाकायदा प्लॉट की ड्रैक्यूनियस को मारने के लिए। इन्होंने एक रॉयट डिस्गाइज एक बाकायदा कि एक फसाद, एक रॉयट डिस्गाइज किया, जिसके अंदर से कुछ लोग, मतलब कि ट्रैंक्विन के, मतलब कि महल के बाहर कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रैंक्विन एक दिन सेनेट से बाहर आ रहा था और एक राइट अरेंज किया गया इन दोनों भाई भाई जो जो एनकस मार्सियस के बच्चों की तरफ से एक राइट अरेंज किया गया और उस राइट के अंदर से ही कुछ लोगों ने इसको घेरा और इसके सर पे बकायदा कुल्हाड़ा मारा और जिसकी वजह से लूसियस जो ट्रैंक्विनियस था वो मौके पे ही मर गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि झूठ बोला गया एट द फर्स्ट, मगर बाद में इवेंचुअली ही वॉज डिक्लेयर्ड टू बी डेड। मगर लीवी यहाँ सेम बात है कि ये भी लिखता है कि लूसियस ट्रांकिनियस को मारने के बाद भी जो दोनों बेटे थे एनकस मार्सियस के, वो फिर भी किंग नहीं बन सके। वी विल डिस्कस दैट नाउ लेटर uh, in this slide। ठीक है। अब सर्वियस टूलियस जो था वो सिक्स किंग था रोम का।
और ये कहते हैं कि ही रेन फ्रॉम 578 to 535 BC। रोमन्स और ग्रीक सोर्सेज के बारे में ये कहा जाता है कि इसने बाद में जाके जो ट्रैंक्यूनियस प्रिस्कस था उसकी बेटी से शादी भी कर ली। एंड ही वाज द फर्स्ट रोम्स एट्रूशियन जो था वो इट वाज अ नेबरिंग सिटी, वहाँ का था फॉरेनर। सो इट कैन बी सेड दैट अबाउट हिम एज वेल। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ इतना पता नहीं कि ही बिकेम द किंग एज वेल, मगर ये लोग ये कहते हैं कि ही हैड पॉपुलर रॉयल सपोर्ट एंड पॉपुलर से एंड ही वाज ऑलरेडी पॉपुलर इन रोम। तो ज़्यादातर जो सेनेट ने इसको पहले ही आसानी से चूज़ कर लिया दैट ही शुड बी द किंग ऑफ रोम। बट इसकी बारे में डिस्प्यूट है कि हाउ ही बिकेम द किंग ऑफ रोम, द सिक्स्थ किंग ऑफ रोम। he had military successes against different cities again। इसने डिफरेंट सिटीज़ पे, आसपास की सिटीज़ पे अटैक किए और इसने बकायदा टेम्पल्स भी बिल्ड किए फॉर फॉर्च्यूना, डायना एंड इसने बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी रोम की वो भी उनको भी ऑफिशियल बनाया। इसने रोमन रिलीजियस टेक्स्ट को बकायदा इंस्क्राइब करने का पहला सिस्टम अरेंज किया। और ही एक्सपेंडेड द रोमन फ्रेंचाइज बेसिकली। और इसने रोमन की जो लोवेस्ट क्लास जो थे सिटीजन और नॉन सिटीजन उनको भी एक तरह का अपोजिशन में ऐड किया। अकॉर्डिंग टू लिवी ही रेन फॉर 44 years until he was murdered by his daughter Tulia and his son-in-law Lucius Tranquinius Superbus. To Lucius Tranquinius Superbus, he will be the last king of Rome, and we will discuss how his monarchy became the end of monarchy basically। So yes, as we uh, इसके बारे में ये कहा था कि इसकी जो बेटी थी, इसकी बेटी ने अपने शोहर के साथ मिलके ये प्लान किया कि वी विल किल Servius Tullius and eventually we will lobby in Senate and Lucius Tranquinius Superbus जो है उसको हम मतलब कि उसकी जो बेटी का शोहर है उसको हम uh, एक तरह का किंग बना देंगे, and which eventually became true। We will just discuss that in a minute। मगर पहले हम डिस्कस करेंगे सर्वियस टूलियस की मेजर कंट्रीब्यूशन। इसने ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, सेंसस जो वर्ल्ड में जो पहला कॉन्सेप्ट था सेंसस का, जिसको हम रायशुमारी कहते हैं उर्दू में, मतलब कि ये गिनना कि हमारे लोग कितने हैं, कि कितनी कितनी पॉपुलेशन है, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, मिलिट्री मैन कितने हैं, इन सब का जो सेंसस का जो पहला तरीका था, ही बेसिकली इन्वेंटेड सेंसस, कुछ लोग ये कहते हैं। इसने रोमन एम्पायर्स की ट्राइब्स को भी इंक्रीज़ किया, इसने लोगों की जो कैटेगरीज थी उनको भी बनाया और कैटेगरीज को इस तरह से डिवाइड किया कि किस तरह अपर क्लास का जो वोट था उसकी ज़्यादा अहमियत थी जो एज़ कम्पेयर टू द लोअर क्लास। ठीक है, इसने मिलिट्री को भी काफ़ी एडवांस किया। ठीक है, इसने मिलिट्री के अंदर डिफरेंट यूनिट्स बनाए, इसने डिफरेंट डिविजन्स बनाए, इसने ओल्डर और यंगर पीपल्स को बाकायदा डिविजन्स के बीच में डिवाइड किया। और इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इसने सर्बियन वॉल जो थी वो पूरी बनाई, विच कनेक्टेड वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर। इसके अलावा इसने टेम्पल ऑफ डयाना बनाया एंड ही ऑल्सो पुट इन प्लेस द कॉमिया सेंचुरिया, द वोटिंग असेंबली बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ। और इसने पहली दफ़ा अपने दौर में कोमिशिया सेंचुरिया के नाम से वो वोटिंग असेंबली के अंदर एक इवेंट रखा जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पीपल ऑफ रोम इकोनॉमिक क्लासेस इसके अंदर वोटिंग की जाती थी फॉर सेनेट। सो दिस वर द मेजर contributions फॉर सर्वियस टूलियस, and after Servius Tullius we will discuss the last account of Servius लूशियस सुपरबस। Lucius Superbus। Let me check after is Lucius Superbus the last? Yes, Lucius Superbus is the last one now। इन लिविस हिस्ट्री सर्विस टेलर्स की दो बेटियां थी, टूलिया द एल्डर एंड टूलिया द यंगर। ही अरेंज्ड their marriage to the two sons of his predecessors, Lucius Tranquinius and Arenus Tranquinius। इसने Lucius Tranquinius और Arenus Tranquinius ने अपनी से दोनों बेटों से अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी थी पिछले किंग सर्वियस टूलियस ने। ठीक है, मगर बाद में क्या हुआ, इसकी जो यंगर बेटी थी उसने अपने शोहर के साथ मिलके बकायदा एक प्लान बनाया सर्विस टूलियस को मारने का। ठीक है,
और इसने क्या किया, इसने कुछ लोग ये कहते हैं कि जो टूलिया मेनर थे उसने कुछ, इसने लूशियस ट्रैंकिनियस सुपर बस को एक तरह का मतलब कि परसुएड किया टू ब्राइब सेनेटर्स, एंड एस ट्रैंक्यूनियस वेंट टू द सेनेट हाउस विद द ग्रुप ऑफ आर्म्ड मैन, और उसने वहाँ बकायदा एक स्पीच दी। ही समन्ड ऑल द सेनेटर्स, एंड उसने इनको और इसने बकायदा सारे सेनेटर्स को समन किया, उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच थी। आ, और स्पीच में ज़्यादातर जो मेन पॉइंट्स थे उसने ये हाईलाइट किया कि जो सर्वियस टूलियस था, ही इज़ अ बॉर्न स्लेव, उसको किंग नहीं होना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। He also told about like how he added the right of poor people to vote in the Senate as well. उसने इसको भी काफ़ी ज़्यादा किया। उसने कहा कि दिस गाय विल रिमूव द अपर क्लास फ्रॉम रोम। उसने अपर मतलब कि ज़्यादातर जो थे मेन जो लोग थे उनके दिलों में नफरत डाली थ्रू ही स्पीच फॉर सर्वियस टूलियस, ठीक है। जैसे ही सर्वियस टूलियस सेनेट हाउस आया अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए, लोग ये कहते हैं कि जो ट्रैंक्विनियस सुपर बस था उसने इसको स्टेप से नीचे फेंका, और सर्वियस के कुछ लोग थे उन्होंने इसको उसी दौरान मार दिया। और बाकायदा ये कहते हैं कि इसकी जो छोटी बेटी थी सर्वियस टूलियस की, वो बाकायदा शी रैन ओवर द डेड बॉडी ऑफ हर फादर ऑन अ चैरियट। और लाइक इतने इतने ज़्यादा ये लोग एक तरह के अपने ताकत के नशे में पागल हो गए थे। वो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दिस इज़ ऑफन हाईलाइटेड एज द वर्स्ट क्राइम इन ऑल ऑफ रोमन हिस्ट्री। जो लूशियस ट्रांकिनियस था, आफ्टर किलिंग his father-in-law, he became the seventh and last legendary king of Rome. इसने 25 साल तक रेन किया, and until there was a popular uprising in Rome which ended monarchy. He is commonly known as Tarquin the Proud, or proud, or superbus, which is known as proud in in a language. The Lucas Tranquinius की जो wife थी Tulia, who was a younger daughter of Servius Tullius, they arranged the kill, as I have already told you किस तरह इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया अपने बाप को मारने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि पीपल ऑफ सेनेट ने वही दोबारा से 1 साल तक वेट किया, एंड अकॉर्डिंग टू रोमन ट्रेडिशन, और through lobbying and through distribution, through putting like people through his speeches, उसने लोगों को ये कहा कि Roman upper class, it is in danger, we cannot let poor to decide who will sit in the Senate and who will not। इस तरह की इसने बातें करके he lobbied and he eventually became the king in 534 BC। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ट्रैंक्यू ने अपने ससुर को मारने के बाद भी उसको दफन भी नहीं करने दिया, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो सेनेटर्स थे उनके दिल में शुबहात पैदा होना शुरू हुए कि हमने किस तरह के बंदे को मतलब कि एक तरह का किंग बना दिया है, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने सेनेट का साइज़ भी छोटा कर दिया, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग इससे डिसएग्री करते थे उनको सेनेट से बाहर उठा के फेंक दिया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैंक्विनिस था, इसने अपने ही कॉल्ड मतलब कि इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिशंस भी किए और काफ़ी ज़्यादा रोम को एक्सपेंड भी किया, मगर एट द सेम टाइम पीपल वर अनहैप्पी इन हिज रूलिंग, क्योंकि जो लोअर क्लास थी जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से निगलेक्टेड थी, बट दे वर अ बिट हैप्पी इन सर्वियस टूलियस रेन, दे वर अगेन अनहैप्पी इन द इन द रेन ऑफ लूशियस सुपरबस। अब लूशियस सुपर के हम एंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी बिकम वेरी लॉन्ग। आई हैव टेकन 48 मिनट्स एंड आई एम और मेरा गला ही पूरा सूख गया है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हिज वॉर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब इन 509 BCE, ठीक है, जो रोमन जो थे देवर ऑन अ स्ट्रीक ऑफ विनिंग सम बैटल्स अगेंस्ट Rutuli, I think so. It's called Rutuli or no, I don't know what it's called. But according to some people, they were in the prospect of war. कुछ जो थे young noblemen जो थे, जो रोमन आर्मी के थे वो आपस में बैठे हुए थे, और दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग, जिस तरह की इवनिंग को सारे
आर्मी सोल्जर्स बैठ के ड्रिंक करते हैं, सारे मजाक करते हैं, और सब आपस में बैठ के मतलब कि ड्रिंक करना शुरू हो गए, आपस में मजाक करना शुरू हो गए। एंड इवेंचुअली उन लोगों ने सब्जेक्ट ये बन गया कि किसकी वाइफ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, इसमें से एक बंदा था जिसका नाम था लूसियस ट्रैंक्यूनियस कोलेटिनियस। उसने क्लेम किया कि उसकी जो थी घर की जो उसकी जो बीवी थी वो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड थी और सबसे अच्छी बीवी थी। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए अ, इन सब ने अपने अपने घरों में अपने दोस्तों की दावतें की टू प्रूव कि किसकी बीवी किसकी बात ज़्यादा मानती है। इवेंचुअली लोग ये कहते हैं कि जो लुक्रेशिया थी, जो क्लैटिनस की बीवी थी, उसके ऊपर दिल आ गया सेक्सटस टार्किनियस का, जो था ना टार्किनियस ऊपर बस कर बैठा था सेक्सटस, उसका दिल आ गया। और इवेंचुअली एक दिन उसने लुक्रेशिया के घर में जाके उससे बाकायदा नाइफ पॉइंट के ऊपर उसको रेप भी कर दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि when she refused, he threatened to kill her and claimed that he had discovered her in an act of adultery with a slave. जब लुक्रेशिया ने मना किया सेक्सटस को रेप करने से, इसको कन्फ्रंट किया, तो सेक्सटस ने ये कहा कि मैं बाहर जाके ये शोर मचाऊंगा कि तुम अपने स्लेव के साथ सेक्स कर रही थी, एंड आई कॉट यू लाइक दिस एंड पीपल विल बिलीव मी बिकॉज आई एम किंग सन। To save herself from shame, she was subjected to rape, and after she was raped, she told the whole story to her husband and her father, and eventually she killed herself. उसका शो था कोलेटिनस, उसने बकायदा अपनी बीवी की लाश अपने हाथ में पकड़ के ये इस बात का ओहद किया कि हाँ मैं लूशियस ट्रांकीनियस का जो था सुपर बस का जो है कि जो किंगशिप है वो ख़त्म करेंगे, और हम मोनार्की को वी विल कट मोनार्की फॉर गुड। हेलो, हाँ। यार फिर लाइट गई थी, तो इट्स ऑल ये गुड, नो चलता वरी। रहेगा। तुम कंटिन्यू करो। Just going to wrap it up now because these hard names are literally drying my throat. इनकी मुश्किल नाम ले लेके मेरा गला सूख गया। So what I'm gonna do is now I'm just gonna quickly wrap this up now. Eventually ये हुआ कि लोगों को खबर पहुंच गई कि दे थे अपराइजिंग इन लुक्रेशियस टाउन। ठीक है, किंग तक भी ये खबर पहुंच गई, एंड ही अपेंडेड एंड सॉर्ट सपोर्ट। उसने क्या किया, उसने आरडिया का जो शहर था वो ट्रैंक्विन सुपर बस ने छोड़ दिया, नहीं और उसने अपने अलायंस की मदद के लिए इटरूरिया चला गया। ठीक है, एंड वहाँ जाके, ठीक है, ही प्रिपेयर्ड टू मा उसके बाद उसने क्या किया, उसने आर्मी इकट्ठा करना शुरू कर दी टू अटैक ऑन रोम। ठीक है, वाइल जो था लुक्रेशिया का जो हस्बैंड था ब्रूटस, उसने भी आर्मी बाकायदा तौर पे जमा करना शुरू कर दी टू फाइट द किंग। इवेंचुअली लोगों ने मतलब कि बाकायदा इवेंचुअली रोम के बाहर एक बहुत बड़ी जंग हुई, एंड eventually the Superbus he was exiled from Rome as a king, and this was the official end of monarchy in Rome. अब जो ट्रायंगल सुपर बस की जो हमें लास्ट अटेम्प्ट मिलती है रोमन एम्पायर के ऊपर दोबारा कब्जा करने की, ही केम्स बैक इन 1949 498 BC, और जब उसने अपने सन इन लॉ ऑक्टेवियस मेमिलियस जो था डिक्टेटर ऑफ तस्कुलम, उसको मतलब कि एक तरह का उसको अपने साथ लाने की कोशिश की, दैट we should attack on Rome again with Latin army, and we should take back our kingship. But eventually यही हुआ कि there was a very hard fought battle and narrowly decided, but eventually जो था जो मेमिलियस था, who was the master of
हु वाज द किंग ऑफ लैटिन, उसको आखिर में मार दिया गया, और जो ट्रैंक्विन था वो दोबारा भाग गया, इसलिए इस जंग के बाद, एंड इवेंचुअली ही एस्केप्ड एंड ही सॉट रिफ्यूज इन एग्जाइल। और इसके बाद जो लुक्रीशिया का जो हस्बैंड था, उसने बकायदा ही टुक एन ऑथ फॉर, आई थिंक सो, ही बिकेम द फर्स्ट स्टेट्स पर्सन ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ रोम, एम आई राइट और नो? यार, he might have been in the Senate, or he might have been one of the two consuls which replaced the king after Superbus. और सुपर बाद जो लुक्रीशिया का जो हस्बैंड था वो ही बन गया था ना, मेरे ख्याल में। किसकी बात करें, कौंसिल की क्या, या जब सेनेट्समैन? सेनेट्समैन बन गया था ना, जो लुक्रीशिया का था जिसका रेप हुआ था, उसी का हस्बैंड बन गया था ना सेनेट्समैन, आई थिंक सो। Yeah, I'm not sure about that. So yeah, have you finished about the end of monarchy? बस. Yes, that's it. Monarchy ended, and Superbus just went into exile, where he died. And that's it. That was the end of monarchy. मगर इसमें एक बात ये देखी जाए कि रोम की जो बेसिस थी, Rome was based on rape. Start rape से हुआ with the rape of Sabines, and the monarchy ended with the rape of Lucretia. Start भी rape से हुआ, end भी rape के ऊपर हुआ। इनकी जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री भी इट्स वेरी मतलब कि यू कैन से नॉट वेरी क्लियर कि रोमन सिटी था वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। कुछ लोग ये समझते हैं कि इसी जो स्टोरी है, इट इज़ बीन मच मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि केन और एबिल की जो स्टोरी थी एडम की, इसी तरह रोमस और रोमुलस एंड रीमस की स्टोरी में हमें सिमिलैरिटीज नज़र आती हैं। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी कि उनको नदी में बहा दिया गया था, कि आई थिंक सो इट वाज हज़रत मूसा, उनकी थी ना स्टोरी में हाल में, हज़रत यूसुफ की थी ना कि उनको मूसा की थी, मेरा ख्याल है मूसा की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सॉरी सॉरी हज़रत मूसा की थी। तो वही स्टोरी ऑफ मोसेस, और वही हमें सेम सिमिलैरिटी मिलती है कि जो रोमुलस और रेमुलस का उनको टोकरे में डाल के नदी के अंदर बहा दिया गया, फिर उनको एक चराहे ने उठा लिया। तो इस तरह की जो सिमिलैरिटीज हमें इनकी रोमन हिस्ट्री के अंदर मिलती हैं। इसके बाद ये देखा जाए, रोम की जो हिस्ट्री है, इट्स नॉट वेरी क्लियर। कुछ लोग, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हमें आखिर में ये समझ आती है कि जब जुल्म बढ़ जाते हैं एम्पायर के अंदर, जब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है, देयर कैन बी जस्ट वन इवेंट विच कैन सेट पीपल ऑफ फॉर अ चेंज। जो लुक्रीशिया का जो रेप था, एक औरत के रेप ने पूरी मोनार्की गिरा दी, क्योंकि पीपल हैव हैड इनफ ऑफ सुपरबस। व्हाट डू यू थिंक? एंड आफ्टर दिस, मैंने ख्याल इसके आफ्टर दिस लीवी ने भी यही डिस्कस किया अपनी बुक के अंदर, द सिटी ऑफ रिपब्लिक के अंदर, कि इसके बाद फॉर एट द एंड ऑफ मोनार्की ख़त्म होने के बाद, रोम के अंदर जब भी किसी पॉलिटिशियन का कैरियर ख़त्म किया करने की बात की जाती थी, तो इट वाज दिस, उस पर यही इल्ज़ाम लगाया जाता था कि दैट ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ किंग, और ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ डिक्टेटर। और जिस तरह के बाद में जूलियस सीजर के साथ भी हुआ, उसके ऊपर भी They मेनली hated the word king, right? They just wanted they just liberty. hated they just hated the word king basically, yes. And उनको किंग के नाम से नफरत थी बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट फॉलोड, और आफ्टर द एंड ऑफ मोनार्की। कुछ लोग ये कहते हैं कि एंड ऑफ मोनार्की के जो बाद की जो स्टोरी है, उसको बहुत ज़्यादा शुगर कोट किया गया, मगर इवेंचुअली कुछ लोग ये कहते हैं कि मोनार्की के बाद भी थे वो chaos in Rome for few decades, और उसके बाद जाके थोड़ा बहुत आप कह लो कि रोम के अंदर इवेंचुअली एक तरह की सेनेट बनी थी, और एक तरह का आ, थोड़ा सा पीसफुल टाइम आया था रोम के अंदर। Yeah, इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम हियर। यार, about the foundation of Rome और उसकी origin being unclear, that might have been because के जो famous historians है ना, Polybius हो गया या फिर Titus Livius हो गया, Livy, तो they were born towards the end of the Republican Rome. जैसे हमारे वो भाई जो हैं, जूलियस सीजर नहीं, लिवी जो है, he was born when Julius Caesar was the governor of his province. वो 10 साल का था जब he went off to war. तो
it's like they none of these famous historians firsthand saw, the foundation of Rome. So they only heard like second hand accounts of other people. और उसकी हमें काफ़ी theories different मिलती हैं about foundation of Rome की 6 से 7 different theories हैं. None of us know कि which one might be true. और जहाँ तक रिपब्लिक की बात है, monarchy में there were 7 kings. The first 6 were benevolent kings. The 7th one was a tyrant, Lucius Superbus, right? तो उसको ओवरथ्रो किया, एंड द रिपब्लिक बिगैन इन 509 BC. People actually hated, the last 600-700 years of monarchy. So the next 500 years came as peace. जब people ruled themselves, they were two consuls who replaced the king. They had pretty much the same power as kings, but the difference was कि उनका जो term था ना, it was of 1 year at max. Or it's they could veto, they could reject the, of the other consul. It prevented any one consul from assuming the power of a king. It prevented any one man from becoming too powerful in Rome, right? तो ये पूरा स्ट्रक्चर तो था सेनेट का. असेंबलीज दो थी मेन, तब उनका स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चराइज उनको किया गया ताकि टू प्रिवेंट एनी वन मैन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल. जो दो असेंबलीज थी, द फर्स्ट वन वाज the centuriata, like you talked about, जो the sixth emperor उसने जो बनाया था. I'm forgetting his name, the one you talked about. उसने ये असेंबली बनाई थी. इसको रिस्ट्रक्चर किया गया. दिस वाज अ सेंचुरियट असेंबली. इट वाज मिलिट्री इन नेचर. इट वोटेड ऑन वॉर एंड पीस. और जो मिलिट्री अफेयर्स होते थे ना, उनके ऊपर स्टेटमेंट्स वगैरह पास करती थी. दूसरी जो असेंबली थी वो ट्राइबल असेंबली थी. इट वाज अ नॉन मिलिट्री सिविलियन असेंबली, जिसमें मैजिस्ट्रेट सेलेक्ट किए जाते थे हु डिड नॉट एक्सरसाइज मिलिट्री पावर. और लेजिस्लेटिंग वगैरह करती थी ये असेंबली. एंड इट ऑल्सो पास जजमेंट्स ऑन पब्लिक पब्लिक ऑफेंसेस एज वेल. जो सेनेट थी, जो मोनार्की में एग्जिस्ट करती थी, इट सर्व्ड एज एन एडवाइजरी काउंसिल फॉर द किंग. लेकिन अब जो सेनेट थी, इट एडवाइज्ड मैजिस्ट्रेट्स एंड काउंसिल्स एंड द रोमन पीपल एज वेल. पीपल इन थ्योरी से कि ये जो सेनेट थी इसके पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन इट हैड इमेंस पावर बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव प्रेस्टीज ऑफ इट्स मेंबर्स. कलेक्ट हाँ, कलेक्टिवली ज़्यादा पावर थी इनके पास, नो डाउट. क्योंकि जो रोमन सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, द पेट्रिशियंस एंड द प्लेबियंस. पेट्रिशियंस थे वेल्दी क्लास, और प्लेबियंस थे, दे वर द कॉमन पीपल. स्लेव और एंड कॉन्विक्ट्स, यस. या पेट्रिशियंस कि इनिशियली पेट्रिशियंस के पास सिर्फ हक होता था कि दे कुड होल्ड पोलिट. क्या मेरा साइन दे रहा है लैपटॉप यार? एक तो पाकिस्तान क्या सीन है यार. लाइट ही कब से गई हुई, मेरी 20% बैटरी है. अच्छा, एनीवे, जो पेट्रिशियंस थे इनिशियली, दे वर द वंस हु वर अलाउड टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज. द प्लेबियंस कुड नॉट. लेकिन बाद में जाके इन 287 BC एक लॉ पास हुआ कि it abolished the requirement that proposed laws had to be approved by patrician senators before the plebeian council could approve them. लेकिन वन रीजन वाई ये जो पॉलिटिकल राइट्स थे, दे डिड नॉट लीड टू मेजर चेंजेस, वो ये था कि सेंचुरियट असेंबली, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन वेल्थ. ईच सेंचुरी या ईच वोटिंग ग्रुप, इट हैड लाइक द वेल्दी एंड द पुअर स्प्लिट इनटू ग्रुप्स. और जो वेल्दी थे ना, दे वर स्प्लिट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. मींस स्मॉलर ग्रुप्स मीन मोर ग्रुप्स, राइट? सो द wealthy had more representation in the assembly. That is why it was very, unfair to the poor. They could never rise and they could never become magistrates or consuls. खैर, इसके अलावा इन 451 BCE रोम में अपना पास होता है पहला लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ. इट वाज द लॉ ऑफ द 12 टेबल्स. इट कंसिस्टेड ऑफ 12 ब्रॉन्ज टेबल्स, जिसमें लिखी हुई थी चीज़ें ऑन लाइक कंसर्निंग लीगल प्रोसीजर, डेट फोरक्लोजर वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑल ऑफ दैट. यस, 12 टेबल्स. मैं तो उसके बारे में भूल गया बताना. हाँ, इट बट इट वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिकन रोम, राइट? तो इट हाँ. तो खैर, मिलिट्री की जहाँ तक बात है, मिलिट्री में ना सेंचुरियट असेंबली was actually the name for the century, right? 100. It was a group of 100 soldiers, जो एक स्टैंडर्ड रोमन मिलिट्री यूनिट होता था अंडर द किंगडम एंड मोस्ट ऑफ द रिपब्लिकन एरा. जो मैन थे, दे वर डिवाइडेड इनटू क्लासेस. और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि जो सोल्जर्स हैं ना, उन्होंने अपना इक्विपमेंट लाना है, उन्होंने अपना आर्मर वगैरह सब कुछ पेश करना है. तो जब द वेल्दी हैड बेटर इक्विपमेंट, दे कुड बिकम बेटर सोल्जर्स. तो यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी नजर आती है बिकॉज ऑफ द सोशल क्लासेस एज वेल. और ये रीजन इसके पीछे ये था कि इट
kind of promoted the wealthy to be better soldiers. इसका reason शायद ये था कि the Romans believed कि the rich had more to lose, so that is why they had more motive to go and fight better, right? So they could win. They they were only protecting themselves and their property if they fought well. So they had more motivation to make the army win the battle. ये उनकी बेसिकली इनकी थ्योरी थी. तो एक्सपेंशन की जहाँ तक बात करें, रोम डिड नॉट हैव एनी डिलिबरेट प्लान टू एक्सपैंड. व्हाई इट डिड एक्सपैंड वाज कि जो नेबरिंग सिटीज और ट्राइब्स वगैरह थी ना, इट इट कन्फ्लिक्ट हुआ उनके बीच में ओवर टेरिटरी, और जबरदस्ती काइंड ऑफ बैटल्स हुई, इसकी वजह से दे इनिशियली एक्सपैंडेड. और सबसे पहली जो हमें मार्क मिलता है वो है सिटी ऑफ वे का. एक पहली बैटल थी in the Republican Rome, which took more than 100 years to settle. ये city of Way पे था. पूरी 5th century लग गई BC इस पे, 5th century BC लग गई इस पे to get this matter settled. और 396 BC में the city of Way was conquered and destroyed. ये थे early campaigns in Republican Rome. इसके बाद आ जाते हैं like conflicts with Latin towns or villages or tribal Sabines by the nearby hills. जिस तरह you talked about the Sabines in at the reign of monarchy. One by one रोम ने डिफीट किया सेबीन्स को भी, नियर बाय लैटिन सिटीज को भी डिफीट किया. उसके बाद मेजर वॉर्स आती हैं. दीज फर्स्टली देयर कम्स द सैमनाइट वॉर्स. ये जो सैमनाइट्स ये इटालियन ग्रुप था का व्हिच लिव्ड इन द सिटी ऑफ सैमनियम. जो पहली सैमनाइट वॉर थी, इट वाज फ्रॉम 340. अच्छा गाइस, टेक्निकल इशू अगेन. अच्छा, I was talking about second Samnite war शायद. हाँ, I was Yes, you talking were about the talking about first something. Samnite war. Acha, I'll start again from this first Samnite war. The first Samnite war obviously was, like I said, it was a short affair. It was a 2 year, two battles which lasted 2 years from 343 BC to 341 BC. इसके बाद the second Samnite war, it lasted around 22 to 23 years. It was much longer. It was more serious for both the Romans and the Samnites in terms of casualties. और by 304 BC जो Romans थे ना, they had annexed a greater part of the Samnite territory and उन्होंने काफ़ी colonies वहाँ पे बना ली. इसके बाद 7 years after their defeat जो Samnites थे, they rose again और उन्होंने एक रोमन आर्मी को डिफीट किया 298 BC में, which started the third Samnite war. इस सक्सेस के साथ जो सैमनाइट्स से उन्होंने एक कोलिशन बनाया सिटीज़ का, और उनको उनको उन्होंने मनाया कि लेट्स वेज वॉर ऑन रोम सारे मिलके. और रोम ने फिर 282 बीसी तक इन सारों को ना इंडिविजुअली इन सिटीज़ को हरा दिया, और यहाँ पे ख़त्म हो गई सैमनाइट वॉर. इसके बाद आती है पिरहिक वॉर या पिरहिक वॉर, whatever you call it. It was this के by the beginning of the 3rd century BC रोम ने अपना काफ़ी नाम बना लिया था in terms of a great military superpower, and many cities feared it. Or it was one of the major powers. It was perhaps the major power in the Italian peninsula. और लेकिन यहाँ पे ये था कि it had not come into conflict yet with the dominant military powers by the Mediterranean Sea, जो कि कार्थेज की सिटी थी जिनको कार्थेजेनियंस बोलते हैं, और ग्रीक किंगडम्स से इसने अभी तक कोई इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई थी रोम की. लेकिन फिर एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट अराइज होता है, एरप्ट होता है इन इन बिटवीन रोम एंड अ ग्रीक कॉलोनी, जिसमें जो ग्रीक कॉलोनी है वो एड मांगती है पिरहस से, जिसकी वजह से पिरहिक वॉर नाम आया. पिरहस था एक रूलर ऑफ द ग्रीक किंगडम ऑफ अपायरस. पिरहस ने 25,000 लोग भेजे इटालियन सॉइल पे 280 BC में, और रोम ने ये कहा यार पहले अपने जो है ना ये 25,000 लोग जो है इनको निकालो इटली से, गेट योर सोल्जर्स ऑफ आर ग्राउंड ऑफ आर सॉइल, देन विल नेगोशिएट. पिरहस ने खैर नहीं माना, उसने बैटल की उसके साथ रोम के साथ, और काफ़ी इनकाउंटर्स हुए विद द रोमन आर्मी. लेकिन पिरहस जो था ही विड्रू फ्रॉम द पेनिनसुला. फिर 275 BCE में पिरहस दोबारा आता है टू फाइट द रोमन आर्मी एट द बैटल ऑफ बेनेवेंटम. ये it marked the complete withdrawal of Pyrrhus's army from Italy, and it also marked the end of the Pyrrhic War. Rome ने इसके बाद Rome had shown that it was capable of destroying entire cities and waging war on entire colonies to just expand because it could expand. So उसका काफ़ी नाम बन गया था by the middle of the 3rd century. It dominated the Italian peninsula and won
इंटरनेशनल मिलिट्री रेपुटेशन। इसके बाद प्यूनिक वॉर्स आती हैं। प्यूनिक वॉर्स are also called the Carthaginian Wars. It were the wars that Roman army fought against the city of Carthage and its people, Carthaginians. ये तीन wars थी between the Roman Republic and the Carthaginian, the Punic Empire. It resulted in the destruction of, enslave कर दिया उनकी पूरी population को, और it uh, also resulted in the Roman hegemony over the Western Mediterranean. इसका origin ये था कि एक आइलैंड ऑफ सिसिली था नियर रोम, और रोम चाहता था कि कोई भी ना इस आइलैंड को रूल मत करे, कोई ऐसा बंदा रूल मत करे इस पे हु कुड बी वेरी पावरफुल इन द फ्यूचर, और जो हमारे हमारे लिए थ्रेट साबित हो। लेकिन जो कार्थेज की सिटी थी, वो हमेशा से सिसिली को वो कॉन्कर करना चाह रही थी टू कंप्लीट द चेन ऑफ आइलैंड्स, जिससे उन्होंने मेडिटेरेनियन को कंट्रोल किया हुआ था। फर्स्ट प्यूनिक वॉर अब इसलिए होती है 264 बीसी में स्टार्ट होती है, क्योंकि रोम जो है ना वो एक डिस्प्यूट में इंटरवीन करता है। डिस्प्यूट था सिसिली के अंदर इन्वॉल्विंग एन अटैक बाय सोल्जर्स फ्रॉम दिस सिटी ऑफ सायरक्यूज अगेंस्ट द सिटी ऑफ मेसेना। अब यहाँ पे दो साइड्स बन गई, सायरक्यूज और मेसेना की। कार्थेज जो है सपोर्टेड सायरक्यूज और रोम सपोर्टेड मेसेना। अब मेसेना और सायरक्यूज साइड हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है बिंड कार्थेज। अब अगले 20 साल तक रोम अपनी फ्लीट जो है वो इंटायर रीबिल्ड करता है, क्योंकि जो कार्थेज है इट वाज अ नेवल सुपर पावर, तो इट कुड हैड टू बीट इट। तो रोम ने अपनी इंटायर फ्लीट बनाई 20 सालों में, और उसने तबाह कर दिया इंटायर कार्थेज की पावरफुल नेवी को, एंड इट स्कोर्ड द फर्स्ट सी विक्ट्री एट मिले इन 260 बीसी, और एक और उसने विक्ट्री की एट द बैटल ऑफ इकोनोमस इन 256 बीसी। और अब ये होता है कि इसके बाद ये इट मार्क द एंड ऑफ द फर्स्ट प्यूनिक वॉर, और सिसिली जो है वो रोम का ओवरसीज प्रोविंस पहला बन जाता है आफ्टर द फर्स्ट प्यूनिक वॉर। सेकेंड प्यूनिक वॉर इस तरह स्टार्ट होती है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स रोम जो है काफ़ी और सिटीज़ को नियर बाय, सिसिली के नियर बाय जो सिटीज़ हैं उनको कॉन्कर करता है। और कार्थेज जो है इट इस्टेब्लिश्ड अ न्यू बेस ऑफ इन्फ्लुएंस इन स्पेन अंडर हैनिबल। यू माइट हैव हर्ड ऑफ हैनिबल ऑफ कोर्स। हैनिबल जो है वो अपनी जो आर्मी है वो एब्रो रिवर के क्रॉस लाता है इन सेकेंटम, जो एक सिटी होती है अंडर रोमन प्रोटेक्शन। एंड जब वो लाता है सेकेंटम के अंदर अपनी आर्मी, तो इट वाज ऑब्वियसली अ डायरेक्ट कॉल फॉर वॉर अगेंस्ट रोम। तो जो सेकेंड प्यूनिक वॉर होती है इट वाज अगेंस्ट हैनिबल एंड हिज ट्रूप्स, जो कि 90,000 इन्फेंट्री थी, 12,000 कैवलरी थी, एंड अ फ्यू एलिफेंट्स एज वेल। और हैनिबल बुरी तरह ना हरा देता है रोमन आर्मी को इन अ स्ट्रिंग ऑफ बैटल्स। इस डिफीट के बाद रोमन्स जो होते हैं दे रिबाउंड, और दे विन दीज विक्ट्रीज इन स्पेन एंड नॉर्थ अफ्रीका अंडर अ यंग जनरल कॉल्ड सिपियो अफ्रीकानस। 203 बीसी के अंदर हैनिबल के जो ट्रूप्स होते हैं दे अबैंडन द स्ट्रगल इन इटली, और वो नॉर्थ अफ्रीका चले जाते हैं। अब ये हो रहा होता है इस टाइम पे कि हैनिबल की ट्रूप्स से एक जगह लड़ रहे हैं वो लोग इन इटली, और दूसरी तरफ रोम जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी एक्सपैंड कर रहा है हैनिबल की ट्रूप्स के अगेंस्ट ही। तो हैनिबल वाज प्रेजेंट इन इटली एट द टाइम, बट दूसरी जगह नॉर्थ अफ्रीका में भी उसके बंदे मारे जा रहे हैं। तो ही वाज लाइक अच्छा मुझे नॉर्थ अफ्रीका ज़्यादा प्यारा है, वो इटली छोड़ जाता है। इटली में घुस जाते हैं रोमन्स, दे ऑक्यूपाइड, एंड क्या क्या नाम है, नॉर्थ अफ्रीका जाता है हैनिबल, एंड ही इज कैप्चर्ड देयर एंड ही लूजेस द वॉर देयर एज वेल। उसकी काफ़ी हैवी लॉसेस होती हैं, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द सेकंड प्यूनिक वॉर। थर्ड प्यूनिक वॉर 149 बीसी में स्टार्ट होती है, जब कार्थेज अपनी ट्रीटी तोड़ते हैं रोम के साथ बाय डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ नुमीडिया। अब रोमन्स जो है वो एक आर्मी भेजते हैं नॉर्थ अफ्रीका, और थर्ड प्यूनिक वॉर स्टार्ट होती है। एक सीज होता है जो 2 साल चलता है, और इसके बाद देयर शॉर्टेज ऑफ फूड वाटर एंड ऑल ऑफ दैट, और जो कार्थेजिनियंस हैं दे सरेंडर बेसिकली, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द प्यूनिक वॉर्स, जिसके बाद 50,000 to 60,000 कार्थेजिनियंस जो हैं वो दे वर enslaved, or these were basically the major wars that were fought during the time of Republican Rome. अब जो रोम है ना, it did not try to turn everyone into a Roman that it captured. जो जिन लोगों पे उसने जिन लोगों को उन्होंने शिकस्त दी, जो भी उन्होंने सिटीज वगैरह को ऑन करके, they did not
tried to, make them Romans and give them their own sense of identity. Regions जो रोमन कंट्रोल के अंदर आती थी ना, they were allowed to maintain their cultural diversity and all of their customs and cultures. जो मेजर रिक्वायरमेंट थी ना, जो रोम इम्पोज करता था, कहता था कि यू जस्ट हैव टू, मतलब आपने एड करनी, यू हैव टू बिकम सोल्जर्स, यू हैव टू फाइट इन आवर आर्मी एंड इन आवर बैटल्स एज वेल. उन्होंने सिटीजनशिप ऑफर की रोम ने टू ऑल द पीपल दैट इट कॉन्कर्ड कि यू विल बी रोमन सिटीजन्स इफ यू फाइट इन आवर बैटल्स विद अस. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं. 211 BCE के अंदर एक स्मॉल सिल्वर कॉइन ये लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम था डेनेरियस. डेनेरियस जो था वो बन गया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करेंसी, जो कि पूरे रोमन पीरियड में रहा. और ये स्टैंडर्डाइज करेंसी थी, फैसिलिटेटेड ट्रेड अक्रॉस द ग्रोइंग रोमन वर्ल्ड. इट कुड बी एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल ऑफ दैट. काफ़ी ट्रेड में और काफ़ी इकोनॉमी को इसने बेहतर किया इस एक इंसिडेंट ने इन 211 BCE. Romans जो थे, they also engaged in trade across Mediterranean Sea after they won that victory over the Carthaginians. इसके अलावा रोम की जो इकोनॉमी थी, इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव थी. इसके अंदर इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा इस तरह हुई थी कि दे enslaved द पीपल दैट दे कैप्चर्ड. जिन सिटीज़ पे उन्होंने कैप्चर जोन सिटीज़ की, तो उनके लोग स्लेव करके ले आते थे वापस, और उन लोगों से चीप लेबर कहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड काम कराते थे. इससे आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई, इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा इनकी बेहतर हुई. और इसके अलावा जो फाइटर्स जाते थे ना, जिनके आर्मी के अंदर बैटल्स वगैरह के लिए, और उनके पीछे ज़मीनें वगैरह होती थी, अगर तो वो रिटर्न नहीं करते थे, तो जो वेल्दी रोमन्स थे जो हु डिड नॉट जॉइन द बैटल, दे काइंड ऑफ बॉट ओवर दैट लैंड, और अपना लैंड उन्होंने एक्सपैंड करने लग जाते थे. और ये जो लार्ज पीसेस ऑफ लैंड थे ना, दे वर कॉल्ड लैटिफंडिया. अब इन लैटिफंडिया के अंदर ही जो वॉर जीतने के बाद स्लेव्स आते थे, दे यूज्ड टू वर्क इन दीज लैटिफंडिया. और इन लैटिफंडिया से ये होता था कि they they were they were able to move from basic outputs to like olives and grapes, and also raising animals, which wouldn't have been an option for small farms. अब अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं. यू वर टॉकिंग अबाउट एन एक्वाडक्ट, राइट, जो कि एक फिफ्थ एम्परर ने, मेरे ख्याल या फिफ्थ या सिक्स ने इंट्रोड्यूस कराया था, बनाया था, जो कि अभी तक भी है. तो द फर्स्ट एक्वाडक्ट was built along with the first road, which you call the Via Appia. तो Via Appia minor भी उसके बाद क्रिएट हुई, which ran all across इटली, एंड काफ़ी उससे इनकी ट्रेड वगैरह भी बेहतर हुई. इसके अलावा जो रोम था ना, इट बिकेम one of the most powerful states in the world by the first century BCE through a combination of military power, political flexibility, economic expansion, and more than just a bit of good luck. इसने मेडिटेरेनियन वर्ल्ड को चेंज कर दिया. इट चेंज्ड रोम इटसेल्फ. न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, सेनेट और मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल दोस टू असेंबलीज, ट्राइबल एंड द सेंचुरियट असेंबली, उसको पूरे रिस्ट्रक्चर किया. बट द थिंग वाज के इट जस्ट उसका डाउनफॉल आया. और लिबी की अगर हम बात कर लें, तो लिबी भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ रोम के अंदर, हिस्ट्री ऑफ रोम की 142 किताबें हैं. इट्स लाइक एन एंथोलॉजी विच इज़ वेरी ह्यूमंगस. इट्स लाइक अ लॉट ऑफ बुक्स इन दैट एंथोलॉजी, द हिस्ट्री ऑफ रोम. उसमें इट्स ही सेज कि जब फॉल ऑफ रोम हुआ ना, फॉल ऑफ रिपब्लिकन रोम, तो दे वेंट बैक टू स्लेवरी. वो पैदा उस ज़माने में हुआ था जब जूलियस सीजर था, गवर्नर था उस जिस प्रोविंस में लिवी बड़ा हुआ. और लिवी रिकाउंट करता है, और वो कहता है कि वॉल्यूम 1 के अंदर हिस्ट्री ऑफ रोम के, वो ये कहता है, द ऑफिसेज ऑफ द स्टेट नॉट हैविंग बीन फिल्ड अप बाय इलेक्शन, मैन इन्वेस्टेड विद नो पब्लिक कैरेक्टर मेड देयर अपीयरेंस एज decemvirs, retaining still the same spirit to enforce their authority and the same emblems to support the splendor of their station. This was held the height of arbitrary government, and the loss of liberty was deplored as irrecoverable. No one champion stood forth in its cause, nor was there a prospect of any such appearing, so that the people not only sunk into despondence, but began to be despised by the neighboring nations, who thought it would reflect shame on themselves if a state which had forfeited its own liberty should be allowed to retain its dominion over others. लिवी का ये आइडिया था कि जो फ्रीडम रोम ने इंजॉय की,
आफ्टर द फॉल फ्रॉम मोनार्की अपने रिपब्लिकन पीरियड में जो एंजॉय की, इट वाज अंडरमाइंड एंड इट वाज इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड बाय राइजिंग एम्परर्स एंड डिक्टेटर्स। अब यहाँ पे फॉल ऑफ रोम की हम बात करेंगे, रोमन रिपब्लिक की बात करेंगे। रोमन रिपब्लिक जो था, इट लास्टेड फॉर अराउंड 500 years। और ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, इट अलाउड पीपल टू वोट फॉर पॉलिटिकल ऑफिशियल्स, एंड इट इज बेसिकली द बेसिस ऑफ मैनी डेमोक्रेसीज दैट वी सी टुडे। इससे कॉन्स्टिट्यूशन था, द लॉ ऑफ द 12 टेबल्स भी था, और इट ऑल्सो हैड अ गवर्निंग बॉडी ऑफ सेनेटर्स। लेकिन रोम की जो एक्सपेंशन थी ना प्राइमरीली, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि इट रिजल्टेड इन a lot of money and revenue for the republic. The reason that was problematic is because it resulted in bribery and corruption. जो वेल्दी थे, दे बॉट वोट्स और अपने दोस्तों वगैरह को बेचे वोट्स वगैरह, उन्होंने फेवर्स वगैरह दोस्तों को दी। ब्राइबरी, करप्शन लेड टू द कॉमनर्स डिस्ट्रस्टिंग द सेनेट। एक एक काइंड ऑफ, आप अरब स्प्रिंग की बात कर लो ना, कि इतनी करप्शन के बाद भी एक वो गुस्सा पलता रहता है कॉमन आदमी के दिमाग के अंदर, which was just the case towards the like the last 2 centuries of the Republican Rome. People distrusted the state because of corruption, because of slavery as well, क्योंकि most of the common people, they were not even allowed to work in the army, क्योंकि army में you need to give your own equipment, you need to have your own armor, so you need to be wealthy to some extent. So the common man was forced to work on the fields, and he was not allowed to work in the army, nor to become a magistrate or a consul, not even to become a member of the senate, because वो is equally represented नहीं था senate के अंदर, the wealthy had more votes. इसके बाद जो जो लोकल फार्मर्स थे, दे कुड आल्सो नॉट compete विद द वेल्दी फार्म्स, जो स्लेव लेबर यूज करके अपना आउटपुट ज़्यादा करते थे। सो द पुअर फार्मर्स इवेंचुअली लॉस्ट देयर लैंड एज वेल। जब रोम की कॉन्केस्ट वगैरह डिक्लाइन हुई, तो उनके सोर्सेज ऑफ इनकम वगैरह भी कम हुए। दिस डिक्रीज इन मनी रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ रोम। एक इकोनॉमिक स्ट्रेस हो गया इकोनॉमी के ऊपर। ऑफिशियल जो थे, उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया टू द सिटीजन्स, जिसने डिसकंटेंट को फर्दर बढ़ाया। अब पुलिस फोर्स भी नहीं थी, क्राइम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था आफ्टर द इंक्रीज इन टैक्सेशन, तो पीपल्स फेड फॉर दिस सेफ्टी। जो पॉलिटिकल आर्मीज थी, पॉलिटिकल आर्मीज का ये भी सीन था कि द वेल्दी हैड देयर ओन पॉलिटिकल आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर फार्म्स। व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग दैट, they got kind of out of control, because they were dragging poor people into their farms, and उनको फोर्स कर रहे थे टू वर्क। when कॉन्केस्ट डिक्लाइन होगी, कॉन्क्रेस्ट डिक्लाइन हुई, तो स्लेव्स की जो इनपुट था, स्लेव्स वो ला नहीं रहे थे इन द फ्रॉम द प्लेसेस दैट दे कैप्चर्ड, तो सिविलियंस को वो पकड़ के ज़बरदस्ती अपने फार्म्स में ला के काम करवाते थे उनसे, अपनी प्राइवेट आर्मीज के थ्रू। प्राइवेट आर्मीज की दहशत थी, किसी को भी ले आया फार्म पे काम करा लिया उनसे। तो इससे कत्लो गारत काफ़ी फैली, और ये जो प्राइवेट आर्मीज है, इनका जो ट्रेंड था वो बन गया, सो दैट एवरी वेल्दी मैन हैड हिज ओन प्राइवेट आर्मी। उनके बीच में जंगें चल रही हैं भाई, फुल सिविल वॉर चल रही है यहाँ पे। और इसके अलावा ये हुआ, द लास्ट पॉइंट वॉज कि 2.5 से 3 लाख लोग ना, दे माइग्रेटेड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सिटीज टू द कोर रीजन्स ऑफ इटली टू escape enslavement। रोम जो है, और इटालियन सिटीज़ जो नेबरिंग थी, उनके पास सफिशेंट पुलिस फोर्सेस वगैरह नहीं थी टू मॉनिटर स्लेव बिहेवियर। लिविंग कंडीशंस भी बहुत हार्श थे। और 136 टू 130 बीसी में एक स्ट्रिंग ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए, जो स्लेव्स वगैरह ने प्राइमरीली प्रोटेस्ट वगैरह किए। और एक एक स्लेव रिबेलियन हुआ था स्पार्टकस का इन 72 बीसी, which weakened the republic immensely। हिस्टोरियंस खैर लास्टली ये कहते हैं कि जो फॉल ऑफ रोमन रिपब्लिक था, वो आया था 59 बीसी में, जब जूलियस सीजर था, पोम्पे द ग्रेट था, और मार्कस क्रेसस जो था, उन्होंने अलायंस बनाया टू रूल रोम। उनका एक प्लॉट था बेसिकली कि वील बिकम डिक्टेटर्स एंड वील रूल ओवर रोम। क्रेसस जो था, ही डाइड इन बैटल। पीछे रह गए सीजर और पोम्पे। सीजर और पोम्पे एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, दे टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर द रूल ऑफ रोम। और जो जो पोम्पे और सीजर के बीच में काफ़ी बैटल्स हुई, राइट, काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए। सीजर वॉन दोज, एंड सीजर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिक्टेटर, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ रोम। अब 510 बीसी से ना, जब से 509 बीसी, सॉरी 509 बीसी से जब से रोमन रिपब्लिक का टाइम स्टार्ट हुआ, पीपल हेटेड द वर्ड किंग, पीपल डिस्पाइज द वर्ड किंग, पीपल वांटेड
liberty and freedom, and they just hated monarchy in all ways, in all aspects. तो रोमन्स की प्राइड ये थी कि हमने 500 साल से कोई किंग नहीं देखा, हम अपने आप को रूल कर रहे हैं, राइट? तो जब सीजर ने अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर किया, तो पहला काम ये हुआ कि जो सेनेट मैन थे उन्होंने आके उसको दे स्टैब्ड हिम, जिस तरह हम शेक्सपियर के डायलॉग सीजर जूलियस सीजर के अंदर पढ़ते हैं, हिज ओन फ्रेंड ब्रूटस वाज द लास्ट वन टू स्टैब हिम। और सो या दैट हैपेंड, जूलियस सीजर वाज मर्डर्ड। और ये 60 कुछ सेनेटर्स थे जिनकी कॉन्स्पिरेसी थी टू किल सीजर। रोम इसके बाद एक पॉलिटिकल डिसरे में पड़ गया। और इसके बाद रिपब्लिक के अंदर देयर वाज नेवर लिबर्टी, देयर वाज नेवर फ्रीडम अगेन, यू नो, द स्टार्ट ऑफ political disarray after this. The Roman Republic entirely fell apart after this. वी कैन डिस्कस जूलियस सीजर इन डिटेल, क्योंकि ये बड़ी एक अगेन एक पोलराइजेशन हुई भी है, क्योंकि सम पीपल थिंक ही एक्चुअली हैड दोस इंटेंशंस टू रूल रोम, टू बिकम अ टायरेंट बिकॉज ही वाज अ मैन लाइक दैट। लेकिन काफ़ी हमें अकाउंट्स ही भी मिलते हैं कि ही नेवर वांटेड दैट। ही वाज लाइक इट वाज द ओनली वे टू सेव रोम, इट वाज द ओनली वे to prevent further destruction. कि he was a dictator, but he was a good dictator, that he oversaw कि अच्छा progress would happen in the years to come. So we can continue the next podcast about Julius Caesar and also the Roman Empire. Yes, we can discuss Julius Caesar in detail, and we can also discuss the destruction that followed after fall of Julius Caesar. Or hopefully, it will be a great podcast. What do you think? करते हैं यार, next one we'll talk about the Roman Empire बट ये तो and पॉडकास्ट Julius Caesar. बहुत लंबी हो गई है मेरे ख्याल कितनी में. हो गई? हाँ, it's more than 1 hour, maybe 1 hour 20 minutes, 30 minutes. I don't know. Hmm. Hmm. Yeah, but We should yes, that is वैसे try longer podcast वैसे, yes. क्योंकि हम usually short I करते हैं, just हम took usually 30-40 yes, minutes करते हैं. yes, because I just took a lot of time discussing monarchy and different kings and what they did and what happened and what was the cause of fall of monarchy. But yes, if we could have concised it, but still, uh, your part was really good, very concise, very good build, very good delivered, and hopefully we will touch the topic of Julius Caesar in detail in next podcast, and we will wrap up the Roman history hopefully in the next podcast. What do you think? It is possible or no? हो जाएगा, घंटे डेढ़ हो की तो जाएगा ना होगी, आराम लेकिन से. रोमन एम्पायर कवर हो जाएगी, आई थिंक सो. Yes, hopefully, no worries. इसके अलावा हमने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर दूसरी पॉडकास्ट भी बनानी है ऑन वेस्टर्न फिलोसफर्स, आई थिंक सो. हाँ, हमने अभी रोम का ये चैप्टर क्लोज करते हैं, सो द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट वुड बी द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का सेकंड पार्ट। उसका थर्ड भी रखा हुआ है पाइल अप करके, उसका फोर्थ भी रखा हुआ है। सो आहिस्ता आहिस्ता विल डू ऑल ऑफ दिस पॉडकास्ट टॉपिक्स जो हमने सोचे में। बट पीपल आर लविंग द पॉडकास्ट अबाउट एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, और उस पर हमारी व्यूज़ भी हम्म, काफ़ी अच्छी आ रही, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है. सो होपफुली येस, वी विल कंटिन्यू टू मेक सच वीडियोस. Apart from that, we are open to any suggestions and any comments if you guys like. And I think so that's it for today. What do you think? खत्म करते हैं, रैप करते हैं। Thank you very much, guys, for seeing.